हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री देवी अरुमसिट्टी और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा ज्ञान चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे सेट 2 के। हाँ, और अगर आप पूछोगे मुझे कि ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं, किस एग्जाम्स के लिए, यू नो दैट इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर आपके टेट एग्जाम्स के लिए। ओके, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू परचेज दिस बुक राइट नाउ टुडे ओनली। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा okay for more details, and here comes our important questions. तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अगर आप पूछोगे कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, कहाँ के हैं, कुछ मेरे हैं, कुछ डिज़ाइन किए हुए हैं, कुछ प्रीवियस का जो भी इम्पोर्टेंट है वो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो फॉर योर थरो प्रैक्टिस वो कॉन्सेप्ट के लिए, एंड एज एंड व्हेन इम्पोर्टेंट मैं उनका मीनिंग्स उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, नहीं तो फटाफट we'll move to the next questions. Okay, I'm trying to cover as many questions in the next 10 minutes जो भी है। मिनिमम 10 तो करूँगी ज़रूर, उससे आगे जितना हो सके उतना। So coming to our first question. The center of Sigmund Freud theory is the thoughts, attitudes, impulses, wishes and motivations we are unaware of. Unconscious या biological motivation proposition, condition concept है या none? कौन सा है आपका आंसर? When it is saying unaware of the unconscious thing, so अगर हम Sigmund Freud के theory, the answer here would be 1. I'll tell you, Sigmund Freud theory जो कुछ है, अब सबको मालूम है ना, ये this is the psychoanalysis वाली theory है, और इसको he came up with this theory of psychosexual development वाली theory किसने लेके आए हैं? Sigmund Freud, and he was the one who came up with the ID, ego, superego, dream interpretation. याद है ना, ये सब ड्रीम का कॉन्सेप्ट, इंटरप्रिटेशन, ड्रीम्स को देख के हाउ डू यू कम, उस ड्रीम का अर्थ क्या है वो बोलना, इट्स सब इट्स ऑल अबाउट सिगमंड फ्रेड्स थियरी. He was the one who came up with all these concepts. So so his theory was based on this, you know, thoughts, attitudes, impulses, जो भी motivations that we are unaware of our in our unconscious या subconscious mind में. So answer 1 होगा. Next, the child's increasing skill at using his muscles is due chiefly to. यहाँ I'm sure most of you will get confused, लेकिन फिर भी what is your answer? 1 maturation, 2 learning, 3 pushing by parents, 4 an opportunity. What is yours? If you have said 2, you're absolutely right. Answer होगा learning. Child's increasing skill at using his muscles is chiefly due to learning. सिर्फ maturation से मेरे muscles, skill बढ़ता नहीं. Only if I learn to use it, then if I'm learning to use my skill in muscles properly, then only वो skill increase होता है, right? So next question, which of the following is part of the psychosocial domain? Psychosocial, immediately आपके मन में कौन आ रहा है? Erikson? Yes. So which of the following is a part of a psychosocial domain? कौन सा होगा? Memory है, judgment, motor skills या styles of behaving? Answer होगा, right? Yes. If you have said answer is 4, then you're right. Behaving. ये होगी psycho. It's more about society and psychosocial domain. उसका this style of behaving ये एक part होगा about the society, how it has its impact, how we behave, how वो हमारी behavior के ऊपर impact होता है, ये सब, right? It's not about memory or judgment या motor skills. Next, an individual becomes a member of social group through the process of. मुझे एक ग्रुप में सोशल मेंबर होना है तो व्हाट इज द प्रोसेस? एजिंग है या लर्निंग, 3 मैच्योरेशन या 4 सोशलाइजेशन? बिल्कुल सही, द आंसर इज सोशलाइजेशन. अगर कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप में होना है तो ऑब्वियसली ही हैज टू, द प्रोसेस इज सोशलाइजेशन, राइट? नेक्स्ट, द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ आर रिफर्ड एज. पहले 2 वीक्स, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते जो कुछ होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में आफ्टर पैदा होने के इमीडिएटली, उसको क्या पीरियड कहते हैं? द पीरियड इज कॉल्ड नियोनैटल पीरियड. यहाँ देख लीजिए आंसर, आई गेव यू बिफोर ओनली. अर्ली चाइल्डहुड, नियोनैटल, पीरियड ऑफ इन्फेंसी. द बेस्ट आंसर वुड बी
पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज राइट, बट व्हाट इज द फर्स्ट 2 वीक्स, यहाँ वेरी एक्सक्लूसिवली पूछ रहे हैं, तो दैट इज नियोनैटल। जनरली क्या होता है ना, नियोनैटल पीरियड में बर्थ से फर्स्ट मंथ यानी 28 डेज तक बच्चा का जो भी हो, दैट बिकम्स योर नियोनैटल पीरियड। न्यूबॉर्न का जो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, तो बच्चे दे गेट अडेप्टेड टू द न्यू एनवायरनमेंट, है ना। तो ये होगा आंसर। Next, Piget stage of infancy is, yes, 100% all my students will give the right answer. Piget stage of infancy is, yes, sensory motor stage, 0 years से 2 साल तक, right? All these are the four stages of Piget's cognitive development, है ना? Sensory motor stage, pre-operational stage, formal, then concrete, ये सब concrete या उसके बाद formal जो भी है, the whole list याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पिकेट कहते हैं फर्स्ट श्योर 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे इस साल, तो 3 साल 2019 में आपको 3 क्वेश्चन आए हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंट। Next, the process by which a trained professional uses psychosocial methods to help people with psychological problems is known as, फिर से दोहराती हूँ, ध्यान से सुनो। द प्रोसेस बाय विच अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, यानी जो ट्रेन प्रोफेशनल है वो क्या कर रहा है, यूजेस साइकोसोशल मेथड्स, वो कोई साइकोसोशल मेथड्स यूज कर रहे हैं टू हेल्प पीपल विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये क्या कर रहे हैं ये आदमी, बिल्कुल, व्हाट इज द आंसर हियर, साइकियाट्री है या साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस या साइको, ये ट्रेन प्रोफेशनल जो कुछ करते हैं वो होता है साइकोथेरेपी। ओके, तो अभी मैंने साइकोथेरेपी क्या है, लेट मी गिव यू द डेफिनेशंस ऑफ साइकियाट्री, ताकि आप नोट डाउन भी कर सकते हो यहाँ पे। इफ इट इज साइकियाट्री, ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है दैट डील्स विद मेंटल इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। अगर हम साइकोथेरेपी बोलते हैं, ये एक ट्रीटमेंट होती है ऑफ दैट मेंटल इमोशनल डिसऑर्डर रिलेटेड बॉडी इलनेस बाय साइकोलॉजिकल मीन्स, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के हिसाब से होता है, then I say it is psychotherapy। जब साइको एनालिसिस है, इट इज ट्राइंग टू एनालाइज, उसमें ही आपको मालूम होता है दिस इज अ थेरेपी, क्लियरली इट इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। साइकियाट्री ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करता है। नाउ व्हेन आई से साइको एनालिसिस, ये मेथड ऑफ एनालाइजिंग साइकिक फिनोमिना एंड ट्रीटिंग emotional disorders that involve treatment sessions during which the patient is encouraged to talk freely about personal experiences and especially about early childhood and dreams. This is all about psychoanalysis। जैसे हम कहा था पिछले वाली फ्रेड का थियरी कॉन्सेप्ट, फ्रेड वाज द वन हु इज फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस, है ना। तो राइट, नाउ डेफिनेशन ऑफ साइको सर्जरी ये होता है कि ये तो सेरेब्रल सर्जरी होती है एम्प्लॉयड इन ट्रीटिंग psychic symptoms, so something related to psychic symptoms क्या जो कुछ हम करते हैं that। Now coming to the 8th question, an affective disorder in which a person swings from one mood extreme to another is classified as, coming to this next question, 8th question, an affective disorder in which a person swings from one mood extreme to another, यानी एक मूड से complete extreme conditions दूसरे मूड को जाने का, इसको क्या कहते हैं, उसको what type of concept I can classify it into, bipolar, unipolar, maniac या depressive। आंसर क्या होगा, राइट, इफ यू हैड सेड बाइपोलर तो आप बिल्कुल सही हो। वन मूड से एक्सट्रीम एंड ऑफ द अदर मूड, आइदर ये या वो। तो जनरली अगर आप बाइपोलर प्रोसेस का भी याद है आपको, वी ऑलरेडी डिस्कस हमारे वीडियोस में साइकोलॉजीज एंड थियोरीज में जॉन एडम्स का बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस, ये बात यूनिपोलर के बारे में। सो जनरली वी लुक्ड एट दिस बाइपोलर इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, है ना। एजुकेशन में बाइपोलर क्या होती है, एडुकेंड एंड एडुकेटर वैसे, लेकिन यहाँ पे when we are talking about disorders and all swinging from one mood to extreme, I can say it is bipolar, yani having or marked by two mutually repellent forces or diametrically opposed nature of views। bipolar वो होती है for your two types of poles या two different thought thought process है यहाँ पे in this scenario।
अगर so I just thought I'll remind you on those aspects also. Okay, now let's move. So that is the reason why we have gone with bipolar. Now let's look at the ninth question. According to Piaget, the process of building mental representation of the world through direct interaction with it is क्या है? पिगेट के हिसाब से बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन सब। यस, द आंसर इज एडेप्टेशन। हियर आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पिगेट, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द वर्ल्ड through direct interaction with it is called adaptation, right? And next question, intelligence can be defined as, या ये क्या है? इंटेलिजेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स, या ऑल द फैक्टर्स दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, या द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्या हो सकती है इंटेलिजेंस? सी, इंटेलिजेंस वो होती है जहाँ हमें एबिलिटी होती है कि प्रॉब्लम क्या है उसका सोच, और उस प्रॉब्लम से हम कुछ सीखें, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो आई द आंसर वुड बी फोर, वुड बी द राइट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट, any stimulus that follows a behavior and increases the likelihood that the behavior will be repeated is called, जो भी स्टिमुलेशन होती है एक वो बिहेवियर को फॉलो करती है, विच लाइकली, यानी बिहेवियर को रिपीटेटिव बिहेवियर करने का जो कुछ होता है उसको हम व्हाट डू यू कॉल दैट? हाँ, क्यू है, पनिशर, रीइंफोर्सर या सिचुएशन स्टिमुलस। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू कुड हैव मार्क्ड रीइंफोर्सर, आंसर वही होगा। रीइंफोर्समेंट, दैट इज व्हाट ना, जब कोई बिहेवियर, जब when I get a good reinforcement, positive reinforcement होती है, then I will repeat that behavior, है ना? So answer is that. And yes, we'll look at this question as well. Yeah, 12th. The ability to learn by observing a model or receiving instructions without reinforcement is called, क्या होगी ये? What would be the thing? Ability to learn by observing a model. You're observing or receiving instructions without any reinforcement is more about, is it option 1 social learning, 2 contingency, 3 cognitive learning, 4 instrumental learning? आंसर क्या होगा? यस, सोशल लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से जो कुछ कर रही हूँ मैं, सोशल लर्निंग है ना ये कॉन्सेप्ट, जो मैं दूसरों को ऑब्जर्व करके सीख रही हूँ, यहाँ मुझे कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, कोई बिहेवियर जो खुद कर रही हूँ थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो आंसर एक होगा, राइट? So today in this video we have done 12 questions, my dear friend. Don't forget to press the bell icon for all the updates, and description में ज़रूर देख लीजिए क्योंकि there's a test down. You can follow the Google link to do a free test and you can get a certification also. अगले क्लास में और भी अच्छे questions डिस्कस करेंगे. Until then, bye bye, take care.